केंद्र सरकार दे वल्लों एक होर वड्डा फैसला ले लिया गया है। इस बार जाति जनगणना होएगी। दस दिए कि देश दे विच जाति जनगणना करवाएगी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट दे वल्लों इस नूं मंजूरी दे दी गई है। सेंसस दे नाल नाल जाति जनगणना भी होएगी। भाव जदों हुण जनगणना होनी है उस दे विच जात आधारित जनगणना होएगी। हालांकि लोक सभा विरोधी धिर दे आगू राहुल गांधी लंबे समय तो जाति जनगणना का मुद्दा चुक रहे हैं, पर कई पासियां तो इसका विरोध भी हो रहा सी ते हुण केंद्रीय कैबिनेट के वल्लों इस नूं मंजूरी दे दी गई है। तो देश के विच हुण जो सेंसस होनी है वो जाति के आधार पर होएगी। भाव पता लगेगा कि किहड़ी बरादरी दे किन्ने लोग ने, किस जाति दे नाल संबंधित देश दे विच किन्ने लोग ने, उस दे आधार ते ये सेंसस होनी है। तां जाति जनगणना कराउण नूं हरी झंडी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट के वल्लों मंजूरी दे दी गई है। दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच होई केंद्रीय कैबिनेट दे विच इस नूं मंजूरी दी गई है। ते हुण जात आधारित जनगणना होएगी। मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी। दस दिए कि कैबिनेट मीटिंग दे विच वड्डा फैसला लिया गया है। सरकार दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि जाति के आधार पर जनगणना करवाई जाएगी। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. तो जाति जनगणना ते मोहर लग चुकी है कि जो सेंसस होएगी उस दे नाल ही जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। मेरे सहयोगी इस वेले नीरज फोन लाइन ते मौजूद ने। नीरज, किस तरह देखा जाए, क्योंकि विरोधी धिरां इस नूं लगातार मुद्दा बना रही सी, मंग कर रही सी कि जाति जनगणना करवाई जानी चाहिए, जिस तो बाद केंद्रीय कैबिनेट के वल्लों भी इस नूं मंजूरी दे दी गई है। देखिए, सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के विरोध में कभी भी बोला नहीं गया था, लेकिन आज जो फैसला हुआ है कैबिनेट कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम दूसरे विपक्षी दल, इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों ने भी मांग किया था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कई राज्यों में कास्ट सेंसस हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि इन कास्ट सेंसस में वो सर्वे की शक्ल में है, इससे राजनीतिक तौर पे प्रेरित है और उससे सामाजिक ताना बुना बिगड़ने का खतरा है। तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि आगामी जो जनगणना होगी, यानी 2021 की जनगणना होनी थी, उसकी जो शुरुआत होगी
उसमें ही जातिगत जनगणना के आंकड़े को रखा जाएगा, यानी मूल जनगणना जो होती है देश में, उसी में जातिगत जनगणना को इंक्लूड किया गया है। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है ऐसे वक्त में जब पूरे देश की नजर सीमा पर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेशनल सिक्योरिटी पे है। तो सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि देश के सामाजिक ताना बाना से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा फैसला राजनीतिक तौर पे अब देखना होगा कि विपक्ष के दलों और सहयोगी दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सरकार के फैसले पर आती हैं। ज्यादा उम्मीद है और जाहिर सी बात है कि ज्यादातर दल सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, खासकर आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया पंजाब के दर्शकों को, कि राहुल गांधी बार बार सरकार पर कास्ट सेंसस की बात करते रहे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कास्ट सेंसस की बात होती रही है। तो ऐसे में सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और न्यूज 18 पंजाब के दर्शकों को यह भी बता दें, कल मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री से मिले थे। हालांकि उस बातचीत का मुद्दा क्या था ये कोई आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया, किसी ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से आना यह फैसला अपने आप में एक प्रतीकात्मक महत्व। नीरज सिंह, मन्निया जावे कि हुण जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है ਜਾਂ OBC है, सारियां दा जिन्नी बरादरियां दे लोक ने सारियां दा रिकॉर्ड होएगा फिर इस सेंसस दे राਹੀਂ? देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो आंकड़ा, वो तो एक उसके आंकड़े हमेशा गिनती होती थी, लेकिन जो भी जातियां हैं, जो भी जातियां भी वर्गों में, जैसे OBC में जो जातियां हैं, सवर्णों में, सामान्य वर्ग में जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति में भी जो जातियां हैं, आदिवासियों में भी जो जातियां हैं, तो तमाम लोगों की जातियों का जो है गिनती की जाएगी। जब सरकार का कुछ प्लान इस तरह से होगा कि जब जनगणना के लिए सरकारी अधिकारी जाएं लोगों के पास, तो उनसे उनकी जाति भी पूछ ले और उनके रिकॉर्ड को रख ले। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बिहार से देता हूँ। बिहार में इस वक्त लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे यानी भूमि को की पहचान की जा रही है कि कौन सी भूमि किसकी, और हर लोग अपने रिकॉर्ड को दर्ज कर रहा है। तो वहाँ एक कॉलम ये भी है कि आपकी जाति क्या है। तो जब जनगणना होगी तो उसमें हो सकता है एक कॉलम ये हो कि आपकी जाति क्या है, और उसी को इंक्लूड कर लिया जाएगा मूल जनगणना में। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।